Hello students, welcome to your English class. I am Sulochana Parik and today we are going to do the 7th chapter of your Beehive book, Packing. Actually this chapter is an extract of a novel written by Jerome K. Jerome. First of all we shall talk about the writer. The writer Jerome K. Jerome was an English writer. He was not only a writer but he has played many other roles also. At the age of 14 he left his home and he became a railway clerk. Then he has worked as a journal, as an actor, and he has also written many books. And one among that is a famous Three Men in a Boat. And this extract, Packing, is just an extract of this novel Three Men in a Boat. This novel is a very humorous type of book and you are going to enjoy while reading this extract. So let's read this and okay students, now we shall talk about this extract. Do you all like traveling? Yes, of course, traveling. Okay, we can visit many different places, we can see many different places and enjoy, right? And what is the main problem when we go for traveling? Okay, what's the worst part? What's the where we have to give more hard work is packing. Packing the things whatever we are going to carry with us. To pack carefully, to keep them carefully, to bring them back carefully so that they are not lost or they are not broken or any problem is done with them, right? So अगर हम कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत सबको अच्छा लगता है, कोई भी मना नहीं करेगा कहीं भी घूमने के लिए लेके चले जाओ. लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हम जो सामान साथ में लेकर जाएंगे उसको सुरक्षित रखना, उसको सुरक्षित वापस अपने घर तक लेकर आना. ओके, और उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें सबसे ज़रूरी होता है उसको अच्छे से पैक करें. नाजुक चीज़ों को किस तरह से पैक करना है और जो वजन वाली चीज़ें उनको लेना है या नहीं लेना है, किस तरह से उनको कहाँ रखना है, किस तरह से उनकी हिफाजत रखनी है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है. और जब किसी इंसान को ये सब चीज़ें सही ढंग से न आए ना तो फिर बहुत बड़ा मजाक हो जाता है. जो इस पैकिंग वाले एक्सट्रैक्ट में इसके जो कैरेक्टर्स हैं किस तरह से अपने सामान को पैक करते हैं एंड व्हाट हैपेंस, जस्ट वी आर गोइंग टू सी दिस. सो बी रेडी टू laugh. Okay, let's see the chapter. So before you read, do you like going on trips? What kind of trips do you enjoy most? How do you feel about having to pack for a trip? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need and or that you can't find them easily? Okay, एक सबसे बड़ी माइनस पॉइंट एक और होता है कि कई बार हम भूल जाते हैं जो ज़रूरी चीज़ हमें साथ में लेके जानी है. कई बार तो लोग जो टिकट बुक करवाते हैं उस टिकट को भी ले जाना भूल जाते हैं जब वो ट्रेन में या बस में कहीं भी सफ़र कर रहे हैं एंड जस्ट दे हैव टू, उसके बाद उनको बहुत बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है. सो भूल जाना एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जो लोग अक्सर पैकिंग करते समय भूल जाते हैं. वो तभी रियलाइज़ करते हैं जब यात्रा के समय उनको उसकी याद आती है, राइट? डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? तो इस बात से जब आप किसी चीज़ को भूल जाते हो, रास्ते में जाते हो, तब आपको याद आता है तो आपको इस बात पर गुस्सा आता है या आप अपने आप पर हंसते हो, दोनों ही है ना. both the things we do. Now read this description of how the author and his friends packed. Okay, let's start. I said I would pack. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. यहाँ पर जो राइटर है वो कह रहा है कि मैंने कहा कि मैं ही पैक करूँगा. ओके, ये कहीं अपने ग्रुप में होंगे और वो अपने ग्रुप में कह रहे हैं कि पैकिंग का जो काम है वो मैं ही करूँगा क्योंकि मैं ही जानता हूँ कि किस तरह से पैक करते हैं. ये अपने मन में अपने आप को बहुत धुरंधर समझते थे कि पैकिंग करने में मेरा कोई जवाब नहीं है. It surprises me myself. Sometimes how many such things there are. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. So now we can see that इसमें एक राइटर है, एक कैरेक्टर, और जॉर्ज और हैरिस उनके जो भी कंपेनियंस हैं, तो उनको वो कह रहे हैं कि
आप लोग सारा काम मुझ पर छोड़ दो पैकिंग का, और आप अपना कुछ और कर लो. ओके, दे फेल इनटू द सजेशन विद रेडीनेस दैट दे हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. और वो दोनों फटाफट खुश हो जाते हैं, चलो ठीक है, जैसे उसने कहा कि मुझ पर छोड़ दो, और उन्होंने छोड़ दिया. ओके, एंड दे वर फ्रीली फीलिंग. And George spread himself over the easy chair and Harry cocked his legs on the टेबल. और जॉर्ज ने अपने पैरों को ऐसे एक के ऊपर एक रखकर इजी चेयर के ऊपर बैठ गया, और हैरिस जो था उसने भी अपने टेबल के ऊपर अपने पैरों को रखकर मतलब बहुत आराम से वो दोनों बैठ गए कि चलो पैकिंग का काम तो राइटर जो है वो जेरोम है वो करेंगे. ओके, द सेकेंड पैराग्राफ. दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड. लेकिन क्या राइटर ने ये सोचा था? इंटेंशन का ये था क्या? नो, ही थॉट दैट मैं मैनेजमेंट संभालूंगा, मैं कहूँगा तुम ये करो वो करो, और ये लोग जब मेरे कहने के अनुसार काम करेंगे. ओके, दिस वॉज अ थिंग, लीव द थिंग्स एंटायरली टू मी. जब उन्होंने कहा, इनका मतलब था कि मैं जैसे कहूँगा वैसे ये लोग करेंगे, बट उल्टा हो गया. What I had meant, of course, was that I should boss the job. What's the meaning of boss the job? Boss the job means किसी भी काम का बॉस बनना, उनको ऑर्डर देना कि तुम ये करो तुम वो करो, उस चीज़ को जस्ट ऑर्डर्स देकर उस चीज़ को संभालना. उन्होंने ये सोचा था. एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर मीन्स वॉट? लेबर. ओके, हार्ड वर्क करना. तो वर्कआउट करना होता है पॉटर, और ऑर्डर देना होता है टू बॉस. Now about under my directions, मेरे directions मैं जैसे जैसे कहता वैसे वो लोग करते, ये मैं चाहता था. I pushing them aside every now and then with oh you here let me do it. और मैं बार बार उनको पुश करता मैं उनको डांटता, या उनको मैं कहता अरे ये क्या किया तुमने, मैं करता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ, ये सब चीज़ें मैं कहता रहता. ऐसा वो सोच रहा था. There you are, simple enough. ऐसे करो ऐसे मत करो, ये सब चीज़ें मैं कहता. Really teaching them, और उनको मैं सिखाता. As you might say, they're taking it in the way they did irritated me. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. और वो कहता है लेकिन ये सब पूरा उल्टा हो गया, और इसे सबसे इरिटेट करने वाली जो चीज़ है, राइटर को जो सबसे बुरी जो चीज़ लगती है वो यही है कि वो काम करे और दूसरे लोग जो है वो आराम से उसके सामने कुछ भी न करते हुए बैठे रहे. ये चीज़ उसको सबसे ज़्यादा इरिटेट करने वाली थी, और यही हो गया था बाय हिज ओन मिस्टेक. नाउ द थर्ड पैराग्राफ. I lived with a man once who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it did him real good to look on at me, messing about. और ये कहते हैं कि मैं पहले भी एक ऐसे इंसान के साथ में रहा हुआ हूँ जो कुछ भी नहीं करता था, सोफ़ा पर गोल गोल बैठ जाता था और कहता कि मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं तुम्हें काम करते हुए, और मेसिंग मीन्स कंफ्यूज होना, काम करते हुए और परेशान होते हुए, कंफ्यूज होते हुए जब मैं देखता हूँ, आई फील रियली गुड. उसने ऐसा कहा. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट. आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लीविंग एंड वर्किंग. लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ. ये राइटर कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं कुछ सोफे पे बैठ जाऊँ और स्लेविंग में स्लेव की तरह, गुलाम की तरह काम करना. ओके, दूसरे लोग गुलाम की तरह काम करें, ऐसा भी मैं भी नहीं चाहता हूँ. मैं उनको हेल्प करता हूँ. आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंडेंट. सुपरिंटेंडेंट मीन्स किसी चीज़ का निरीक्षण करना. लेकिन मैं बैठता नहीं, सोता नहीं सोफ़ा पर, मैं उनको काम करते हुए देखता और उनका निरीक्षण करता. एंड वॉक राउंड विथ माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स. यू सी, इमेजिन करके देखो कि मतलब ये दूसरे लोग काम कर रहे होते और ये अपने पॉकेट्स में हाथ डालकर उनके पास ऐसे वॉकिंग करते हुए उनको देखता, नहीं तुम ये करो तुम वो मत करो, ये सब उसको डायरेक्शंस देता. ऐसा उसने इमेजिन किया. एंड टेल हिम व्हाट टू डू. इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट. वो कहते हैं ये मेरा ऐसा नेचर है, मैं बैठा नहीं रह सकता. मैं चाहता था कि मैं उन लोगों को सपोर्ट करता और उनको एडवाइस देता. द फोर्थ पैराग्राफ. However, I did not say anything, but started the packing. लेकिन अब ये अपनी बात को वापस जुटला नहीं सकता था, नहीं कह सकता था कि अरे मेरा मतलब ये नहीं कि पूरा काम मुझ पर छोड़ दो, यानी मैं ऐसा करना चाहता था. ये सब उसने इमेजिन किया, मन में सोचा, और फिर इसे चुपचाप सोचा कि चलो पैकिंग ही तो करना है बाबा, कर डालते हैं. ओके. However,
सो कुछ भी बोला नहीं, पैकिंग करना शुरू कर दिया. इट सीम ए लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट. लेकिन इसने जितना आसान सोचा था उससे भी लंबा काम था ये, यानी कि इससे भी ज़्यादा मुश्किल वाला काम था. जैसा इसने इतना आसान जो सोचा था इतना आसान नहीं था. और बट आई तो गॉट द बैग फिनिश, लेकिन इसने बैग को फिनिश कर दिया, यानी कि पैकिंग को कर डाला एट लास्ट. एंड आई सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, और उसके ऊपर बैठ कर बैग के ऊपर और उसको स्ट्रैप यानी कि जिप को बंद किया. एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस. हैरिस ने कहा तुम बूट्स अंदर नहीं रखोगे? बूट्स मीन्स शूज. एंड आई लुक्ड राउंड एंड आई फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम. और उसे पता चला कि मैं तो भूल गया हूँ अपने शूज़ जो थे उनको बैग में नहीं रखा. और बैग को एकदम ऊपर बैठ कर, यानी कि वो पूरा भरा हुआ था. अब जैसे ही जेरोम ने अपना बैग पैक किया तो हैरिस ने कहा कि क्या अपने शूज़ अंदर नहीं डालोगे? और एंड ही फाउंड दैट ही हैज़ फॉरगॉट टू कीप द शूज़ इनसाइड. Now he could not have said a word until I had got the bag shut and strapped. कि पहले नहीं कह सकता था, इसको मन में आता है कि पहले नहीं बता सकता था कि मैंने शूज़ नहीं डाले. जब मैंने जिप को स्ट्रैप में बैग को स्ट्रैप नहीं किया था तब तो भी बता सकता था कि मैंने बूट्स जो उनको अंदर नहीं रखा है. Of course, and George laughed. And George जोर जोर से हंसने लगता है. One of those irritating, senseless laughs of his. और ऐसे irritating laugh, मतलब अभी जो जेरोम उसको गुस्सा भी आ रखा है और ऊपर से जॉर्ज उतनी जोर जोर से हंस रहा है, तो he is feeling very irritating. Now, one of this, they do make me so wild. And he says that इस तरह से करते हैं तो I just become wild when I see them doing all these silly things. I opened the bag and packed the boots in, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. And he opened the bag and packed the shoes again, and then he strapped it back. उसको वापस फिर से बंद करता है. I packed my toothbrush, और उसको फिर याद आता है कि क्या मैंने अपना टूथब्रश उसके अंदर डाला कि नहीं. I don't know how it is, but I never know whether I have packed my toothbrush. लेकिन फिर भी इसको समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा है कि टूथब्रश इसने बैग में डाला या नहीं डाला है. My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life a misery. And he says that my toothbrush is a very, very mysterious thing. So always I just forget to pack it or to use it, right? Now I dream that I have not packed it, and he says dream means यहाँ पर उसको याद आता है, उसको इमेजिन कर रहा है कि शायद मैंने टूथब्रश को बैग में नहीं डाला है. And wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it, right? Now and in the morning I pack it before I have used it. ये कह रहा है जब मैं पैक करता हूँ तब मैं सो जाता हूँ, फिर नींद से उठता हूँ, सोचता हूँ अरे मैंने अपनी टूथब्रश को बैग में नहीं डाला है, और फिर मैं उसको बैग में डालता हूँ. फिर जब सुबह उठता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने उसको पैक किया है या नहीं किया, और उसको hunt means to search for. I have just searched for it. I have packed it before I have used it and have to unpack again to get it, and it is always the last thing I turn out of the bag. Okay, and हमेशा उसको जब पैक करता है अनपैक करता है उस समय वो निकाल देता है, और फिर जब उसको पैक करता है तब उसको याद आता है कि अरे मैंने उसको नहीं डाला है, और लास्ट में सबसे लास्ट में उसको टूथब्रश अपने बैग में डालना पड़ता है. Now and it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it. फिर उसको निकालता है, यूज़ करता है, और सुबह वापस उसको बैग के अंदर डालना भूल जाता है, एंड उसको कम्प्लीटली भूल ही जाता है. And have to rush upstairs for the last moment and carry to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. और जब घर से नीचे उतरता है तब उसको याद आता है कि फाइनली उसने टूथब्रश को इस्तेमाल करने के बाद में बैग में नहीं रखा, और फिर वो वापस ऊपर जाता है अपस्टेयर्स, अपने टूथब्रश को लेता है, हैंकी के अंदर रखता है और पॉकेट में डालकर उसको रेलवे स्टेशन तक लेकर जाता है. Okay, so this is the funny thing. He is saying that he always do this type of mysterious, all this type of funny things. Of course, next paragraph number 6. Of course, I had
had to turn every mortal thing out now, and of course I could not find it. अब हर एक चीज़ को, बैग की हर एक सामान को ये बाहर निकालता है और अपनी टूथब्रश को ढूंढता है. I rummaged the things up into much the same state that they rummage, they have given the meaning search in a hurried or careless way. जब हम किसी चीज़ को जब खो जाते हैं तो हम ढूंढते हैं ना, सारी दूसरी चीज़ों को यहाँ वहाँ पटकते हुए हम उसी चीज़ को सर्च करते हैं. That's called rummage. Okay, then he is rummaging all other things and he is searching for his toothbrush in the bag. Then they have given you a picture about this. See, about these three friends. I suppose he's Jerome, and he is packing the things. And there is, see, George and Harris. They are sitting on the sofa and the easy chair. So next. Must have been before the world was created and when cows reigned. Of course, I found George and Harris 18 times over, but I could not find my own. I put the things back one by one. अब ये सारा सामान यहाँ पटकते हुए रखते हुए सारी चीज़ों को देखता है. हैरिस और जॉर्ज की टूथब्रश को 18 टाइम्स देख लिया, बैग के अंदर मिल जाती है, लेकिन अपनी टूथब्रश उसको नहीं मिलती. I found George and Harris 18 times over, but I could not find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside her boot. I repacked once more. तो कहाँ मिलती है? बूट के अंदर इसकी टूथब्रश मिलती है. And once again he packed the bag. 7th paragraph. When I had finished it, George asked if the soap was in. अब जब ये सारा पैक कर देता है, जब जॉर्ज धीरे से पूछ रहा है, साबुन सोप रखी है अंदर. Okay, he is asking him. I said I did not care a hang whether the soap was in or whether it was not. And I slammed the bag shut and strapped it. और इसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मुझे नहीं मालूम कि सोप अंदर है या नहीं है, whatever. And I'm just shutting the bag and I just shut the bag close. Now I found that I had packed my specs in it and had to reopen it. और इसको अपना चश्मा बैग के अंदर भूल जाता है और विदाउट द स्पेक्टेकल्स व्हाट इज गोइंग टू डू. सो वो फिर से उसको अनपैक करता है और अपने स्पेक्स को ढूंढता है. ही इज रिपीटिंग ऑल दिस थिंग्स अगेन एंड अगेन. नाउ आई गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM. 10:05 हो चुकी थी रात की और तब इसने अपने बैग को फाइनली पैक किया. And then there remained the hampers to do. Hampers में जो खाने पीने की जो baskets होते हैं उनको पैक करना भी बाकी था. Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest, and I agreed and sat down and they had a go. और अब ये जो दोनों फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं भाई 12 बजे से पहले सब कंप्लीट करना है और चलो एक काम करो तुम रेस्ट कर लो और हम लोग ये काम जो बाकी का रह गया जो बास्केट्स पैक करने हैं तो हम लोग कर लेते हैं. और ये भी सोचता है बहुत परेशान हो गया, थक गया एंड ही गॉट इरिटेटेड, सो ही लेफ्ट दैट वर्क एंड ही इज टेकिंग द रेस्ट नाउ. Both the other friends, George and Harris, they are packing for the baskets now. They began in a light-hearted spirit. Light-hearted means बड़े आराम से. उनको लगता है कि पैकिंग करना क्या है, बहुत ईजी है, राइट. बहुत आराम से वो स्टार्ट करते हैं. Evidently intending to show me how to do it. और वो एक्चुअली इसको बताना चाहते थे कि कैसे करते हैं काम. देखो हम बता रहे हैं. बहुत आराम से वो स्टार्ट करते हैं. I made no comment. I only waited. With the exception of George, Harris is the worst packer in this world. Okay, and I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. See, and जबकि grammatically ये सही नहीं होता, but just for fun the writer has written in this way. ये सारी चीज़ें, see, cups and plates or kettles, bottles or tomatoes, cakes, you see all these things, कुछ some are hard things and some are soft things. ये सारी चीज़ें ला कर एक दूसरे के ऊपर वहाँ पर ढेर लगा रहे थे. ओके, दे डोंट नो वेयर टू पैक विच थिंग, किस चीज़ को कहाँ पर पैक, किस तरह से पैक किया जाता है. दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट. ओके, वहाँ ला कर ढेर लगा रहे हैं. It did. They started with breaking a cup, and now see, and I felt that the things would soon become exciting. और इसको लगा कि हाँ अब बड़ा मज़ा आएगा और ऐसा हुआ भी. did. और they started with breaking a cup. सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक कप तोड़ा. That was the first thing they did. ये सबसे पहला काम जो उन्होंने शुरुआत की थी.
They did that just to show you that what they could do and to get you interested. और ये कह रहे हैं कि बहुत बहुत ही कॉमिकली लिखा हुआ है कि वो इसलिए उन्होंने ये कप तोड़ा कि वो दिखाना चाहते थे कि वो ऐसा भी कर सकते हैं, और उन्होंने बहुत ही सुंदर शुरुआत की अपने वर्क की। एंड आपको इंटरेस्ट आएगा ये सब देखने के लिए। Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it, and they had to pick out the tomato with a teaspoon. And see, you see, they have packed the strawberry jam on the tomatoes, and सारे tomatoes खराब हो चुके हैं, और now they have to pick out the tomatoes with a teaspoon, and see, they are taking it from the bag जो खराब हो चुका है। And then it was George's turn, and he trod on the butter. Trod on is stepped on. बटर रखा हुआ था, उसके ऊपर पैर रख देता है, वो फिसल जाता है, पूरा बटर जो वो खराब हो जाता है। He didn't say anything, but I came over and sat on the edge of the table, and I did not say. राइटर कह रहा है मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं जस्ट आई एम सीइंग ऑल द वॉट एवर द इंसिडेंट इज हैपनिंग। ओके, उसको सारा नज़ारा देख रहा है और वो कुछ नहीं बोल रहा है, एक टेबल पर आकर चुपचाप बैठ जाता है। Okay, and watch them. The 10th one, see, you can see the picture here. The writer he is sitting on the table. Now George और Harris हैं दोनों, और see here he has just stepped on the butter. And एक और character है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। He is a very important character of the story, the dog. Okay, and he see all the things are laying on the floor. Okay, move on. The next. It irritated them more than anything I could have said. और ये जब चुपचाप जाकर टेबल पर बैठ जाता है, ये सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग। कभी हम कोई मिस्टेक करते हैं ना और सामने वाला हमें कुछ कह देता है तो भी तो तसल्ली होती है, तो सामने वाला कुछ नहीं बोलता ना तब ज़्यादा गिल्टी फील होती है। ओके, तो सेम थिंग यहाँ पर भी इन लोगों को बहुत इरिटेट होता है जब ये कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप जाकर हंसता हुआ बैठ जाता है। I felt that. It made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them. और अब उनको घबराहट से लगी, अरे हमसे काम बिगड़ रहा है क्या, और वो बहुत जल्दी जल्दी वो काम करने लगते हैं, नर्वस हो जाते हैं और भी ज़्यादा चीज़ें बिगाड़ने लगते हैं। And then could not find them when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in। अभी ऐसी जो चीज़ें जो बहुत नाजुक चीज़ें थी उनको उन्होंने नीचे डाल दिया, भारी सामान को ऊपर डाल दिया, और सारे सामान खराब हो रहे हैं, स्मैश हो रहे हैं। They 10th paragraph, they upset salt over everything, and as far as for butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did। और जो बटर था, ये राइटर कह रहे हैं कि 1-2 पेंस यानी थोड़ा सा बटर कितना इस्तेमाल करते हैं अपन, बटर जब ब्रेड पर लगाते हैं, कहीं भी चपाती पर लगाते हैं, तो यूज़ ओनली स्पून और 2, राइट। तो लेकिन ये कह रहे हैं 2 आदमी मिलकर कितने बटर को यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या उससे कर सकते हैं, ये मैंने यहीं पर देखा, what they are doing with it। After George had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle. It would not go in, and what was in would not come out. They did scrape it out at last and put it down on a chair, and Harry sat on it, and it stuck to him. वो किसी केटल के अंदर डालने की उसको कोशिश करते हैं, जब उसने वो पहले उसने स्टेप लगा दिया था, उस बटर को उठाते हैं, उसको किसी केटल में डालने की कोशिश करते हैं, केटल के अंदर वो नहीं जा रहा है, केटल के अंदर जो है वो बाहर नहीं आ रहा है, और ऐसी हालत में वो लोग उसको एक चेयर के ऊपर रख देते हैं, और हैरिस जो होता है वो उसके ऊपर बैठ जाता है, उस बटर के ऊपर। नाउ दे डिड स्क्रैप इट एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। और ये हैरिस उसके ऊपर बैठ जाता है, उसको स्टक हो जाता है, वो उसी के ऊपर चिपक जाता है, ओके, उसके पीछे चिपक जाता है बटर, और ये दोनों जने पूरे रूम में बटर को ढूंढ रहे हैं कि वो हमने कहाँ रख दिया। I will see paragraph 11. I will take my oath. I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. अब उस सीट पर देख रहे बटर वहाँ पर नहीं है, तो जॉर्ज बोल रहा है, अरे मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने यहीं पर रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। और I saw you do it myself not a minute ago, said Harris। तो उसने कहा हाँ मैंने भी तो 1 मिनट पहले देखा था, कहाँ गया, अब ये भी तो बटर यहाँ रखा था, अब वो कहाँ गया, और वो उसके पीछे चिपका हुआ है, उसको मालूम नहीं है। Then they started round the room again looking for it, and then they met again in the center and stared at one another। अब वो पूरे रूम में घूम घूम कर बटर को ढूंढ रहे हैं, और जब एक दूसरे का चेहरा देखते हैं फिर वो कहते हैं कि नहीं मिला, राइट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।
Then they started round. A most extraordinary thing I have ever heard of, said George. So mysterious, said Harris. Harris ने कहा बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत mysterious है कि बटर कहाँ चला गया. Then George got round at the back of Harris and saw it, and then George found that it was at the back of Harris. And why here? It is all the time, he exclaimed indignantly. उसने कहा यहाँ था ये इतनी देर से जो हम ढूंढ रहे थे. And he found out. Where? Said Harris, spinning round. अब Harris गोल गोल घूम रहा है. कहाँ है उसको नहीं मालूम कि उसके पीछे ही बटर चिपका हुआ है. Stand still, can't you? And then George कहता है तुम चुपचाप सीधे खड़े रहो ना, तभी मैं तुम्हें उतार कर दूंगा. कहाँ है? Flying after him, and they got it off and packed it in the teapot. And now they उन्होंने निकाला उसको किसी teapot के अंदर रख देते हैं. Montmorency. Now the very very funniest character of this story is Montmorency the dog. Montmorency was in it all. Of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. और Montmorency जो dog है ये भी बड़ा funny है और इसका हमेशा यही aim रहता है कि किसी भी चीज़ को बिगाड़ना है. And Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at if he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted. और वो उसी चीज़ पर आएगा, उसी जगह पर आएगा जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं होती है. And be a perfect narcissist, narcissist डिस्टर्ब करने वाला वो बन जाता है. And make people mad, और लोगों को क्या कर देता है? पागल कर देता है. And have next page 87. You can see the pic. Here, Montmorency the dog is doing mischiefs with the packed things, and this writer is beating him or whatever, right? Montmorency got into the hamper before Harris could land him with the frying pan. So, this is Harris. Things thrown at his head, and then he feels his day has not been wasted. और वो ऐसी सी हरकतें करता है कि उसके सर के ऊपर कुछ सामान मारो, उसको पीटो, तब उसको लगता है कि आज का दिन मेरा अच्छा बीता है. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim. वो किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब करेगा और उसको लोग आकर पिटाई करें, यही इसका सबसे बड़ा एम होता है. And object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. जब वो ये सब कुछ कर लेता है तब उसकी खुशी का पार नहीं रहता, यानी कि वो इतना खुश हो जाता है. he is very feeling very proud on himself. The dog, उसको खुशी होती है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम कर लिया, ऐसा वो जस्ट एन इडियट डॉग. ओके, 13th paragraph. He came and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. He put his leg into the jam and he worried the teaspoons, and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. अब वो देखता है लेमन्स को, जब वो देखता है वो सोचता है कि ये रैट्स है और उनके पीछे पीछे दौड़ता है ये डॉग और हर चीज़ को ख़राब कर देता है. बैग में से जो भी चीज़ें उन सबको तोड़ रहा है, परेशान कर रहा है. फिर हैरिस ने एक फ्राइंग पैन उठाया और उसको बहुत ज़ोर से मारा. Yes, 14th point. Harris said, I encouraged him. I did not encourage him. Harris फिर उसको जेरोम को कहता है तुमने इसको encourage किया, तुम इसको कह रहे हो तुम ऐसे हरकतें करो डॉग को. और जेरोम कहता है नो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है. A dog like that does not want any encouragement. और कहता है ऐसा जो डॉग है ना उसको कोई encouragement की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी इतना stupid है, उसको कोई सिखाने की आवश्यकता नहीं है. It's a natural original sin that is born in him that makes him do things like that. और उसके अंदर वो ओरिजिनलिटी नेचुरली ऐसा उसका जो है हैबिट है जो उसको अपने आप ही सब कुछ करने के लिए सिखा रही है और उसको सिखाने की या कहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है. The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. और वो हैरिस जो है सारी पैकिंग कंप्लीट हो गई 12:50 पर, and he's sitting on that hamper, he's sitting on the basket and saying, I think no, nothing is broken. Okay, you imagine जिसमें plates और all the things, जो फ्रूट्स और सब कुछ जो रखा हुआ है उसी बास्केट के ऊपर बैठ रहा है और बोल रहा है कि कोई चीज़ टूटी नहीं होगी. Okay, this is the funniest thing in this extract.
जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन. तो जॉर्ज ने कहा जो कुछ भी टूटना था सब टूट चुका है, अब कुछ बाकी नहीं रहा है. Which reflection seemed to comfort him. He also said he was ready for bed. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. Okay, Harris जो था हो सकता है कहीं और रहता होगा, लेकिन वो उस रात उन्हीं के साथ सोने वाला था और वो लोग ऊपर चले जाते हैं सोने के लिए. अब ये सब काम कंप्लीट कर गए, बहुत टायर्ड हो गए. एवरीवन वाज रेडी टू स्लीप. द 15th पॉइंट, वी टॉस्ड अबाउट बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी, ही सेड. नाउ देयर वाज ओनली 2 बेड्स आई थिंक एंड दे टॉस करते हैं ना कॉइन लेकर, वो टॉस करते हैं कौन कहाँ सोएगा, राइट. और हैरिस जो था वो उसके साथ में पास में सोने वाला था. ही सेड डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड, जय इज जेरोम, राइट. तो वो कहता है जी तुम्हें क्या चाहिए, इनसाइड और आउटसाइड मीन्स जो जिस साइड से बेड के पास में दीवार के पास में जो बेड लगा होता है वो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, तुम कहाँ सोओगे. आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड. ओके, एंड सेड दैट आई जनरली प्रेफर टू सिट इनसाइड, sleep inside, sorry. Harris said it was odd. George said, what time shall I wake you fellows? Harris said 7. I said no, 6. Okay, and now वो जॉर्ज पूछा कितने बजे उठाना है सुबह, तो एक कह रहा है 7, एक कह रहा है 6, and at that point also they are arguing. No, 6, because I wanted to write some letters, and he says that at 6 o'clock I want to get up because I want to write some letters. Harris and I had a bit of a row over it. Row means लड़ाई, थोड़ा सा उन लोगों ने argument किया. But at last split the difference. Split the difference, the meaning that has been given. This means that they agreed on 6:30 because it was halfway between 6 and 7. Okay, और उन लोगों ने agree कर लिया 6:30 के लिए क्योंकि ये 7 और 6 के बीच का टाइम था और थोड़ा सा स्प्लिट हो गया, यानी कि डिफरेंस जो था वो थोड़ा सॉर्ट आउट हो गया. नाउ जॉर्ज 16th point and the last one. George made no answer, and we found on going over that he had been asleep for some time. So we placed the bath where he could tumble on into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. और इन लोगों ने अपना जो भी स्नान करने के लिए जो भी था वो सब अपना सही ढंग से रखा, सब चीज़ें, ताकि वो कहीं उस पर टकरा न जाए. और just they went into the bed and had a good sleep. Actually, this extract is from Three Men in a Boat. I told you already. It's a novel. It's a very, very funny novel, and this extract is just taken from it. If you find time, just read this novel. You will feel it very, very interesting and funny. Okay, that's all in the story, students. If you have any doubts, please try to contact me. I will try all my best to clear your doubts, and read the story again. It's a very nice one. And if you have any doubts, please contact. That's all in the story. Have a good day. Goodbye.